بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم دیکھیں گے جو ہم اسلامک فائنینشیل کے ٹاپکس دیکھ رہے تھے، اس میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے سکوک. سکوک ہمارے پاس کنونشنل بانڈز کے ایکولنٹ چیز ہوتی ہے. بانڈز ہم نے دیکھا کہ یہ ایک ڈیٹ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جس میں کمپنیز ایشو کرتی ہیں ٹو جنریٹ لیکوڈ، اپنی لیکوڈیٹی جنریٹ کرنے کے لیے، یا اپنے ان کے پاس جو لونز آلریڈی انہوں نے لیے ہوئے ہوتے ہیں اس کو انہوں نے لیکویڈیٹ کرنے کے لیے، یا اس کو اپنے پاس منی ارن کرنے کے لیے ایشو کیے جاتے ہیں بانڈز. یہ ہمارے پاس گورنمنٹ بھی ایشو کر رہی ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ کمپنیز بھی ایشو کر رہی ہوتی ہیں بانڈز. اس کا پروسیس ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بینک یا کوئی بھی اوریجنیٹر ہمارے پاس سے اپنے لونز جو لیے ہوتے ہیں ان کو سیل کرتا ہے. جو اسپیشل پرپز اینٹیٹی اسی پرپز کے لیے بنائی گئی کمپنیز ہوتی ہیں، یا ان کا ڈیوٹی ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ سیکیورٹیز ایشو کسی دوسری کمپنی سے لونز پرچیز کرتی ہیں اور ان کی سیکیورٹیز ایشو کرتی ہیں، اور وہاں سے جو ہمارے پاس ارننگ آتی ہیں ان سے آگے پروسیس کرتی ہیں. یہاں پر بھی انہوں نے جب سیکیورٹیز ایشو کر دی ہیں، اس سے جتنی بھی انویسٹرز نے بانڈز پرچیز کرنے کے بعد جو پرائس پے کی گئی تھی، وہ پرائس انہوں نے ان کے بینک کو یا اوریجنیٹر کو دے دی ہیں. دین اب یہ اوریجنیٹرز یا بینک ان جو پرائس حاصل ہو جاتی ہے، اس سے اپنے جو ریکوائرڈ ورکس ہوتے ہیں جن کو انہوں نے کرنا ہوتا ہے، یا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے لون کو سیل آؤٹ کیا ہوتا ہے، وہ اپنا ڈیوٹی کام کر لیتے ہیں. یہاں پہ اگر ان کیس آف بینک ہم دیکھ لیں تو ہمارے پاس ڈفرینٹ بوروورز ہوتے ہیں، یہ ڈفرینٹ وہ اکاؤنٹ ہولڈرز ہوتے ہیں جو کہ اس بینک میں انہوں نے اپنی منی ڈپازٹ کروائی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ اس بینک کے لیے کیش فلو جنریٹ ہو جاتا ہے. یہاں سے یہ آپ کے پاس جب کیش فلوز آتے ہیں، یہی کیش فلوز آپ ان کو آگے وہ ریٹرن دے رہے ہوتے ہیں اسپیشل پرپز انٹیٹی کو. یہ آپ دین یہ ان کا پروفٹ ارن کرنے کے لیے، یا جو ان انویسٹرز نے اپنا جمع کروایا ہوا ہوتا ہے پیسہ جس کے بعد سیکیورٹیز خریدنی ہوتی ہیں، اس پہ ان کو یہ اپنا پروفٹ دے رہے ہوتے ہیں. پیرالل ہی یہاں سے جو کیش فلو جنریٹ ہوتے ہیں، یہ ٹرسٹ کے فارمیٹ میں جمع ہو رہا ہوتا ہے. ٹرسٹ یعنی کہ آپ کے پاس اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اماؤنٹ جو انویسٹڈ اماؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی سے ایک ٹرسٹ سا بنا دیا جاتا ہے، یا وہیں سے کیش فلوز اپنی انویسٹرز کے پاس بھی جا رہے ہوتے ہیں. ریٹنگ ایجنسیز ہوتی ہیں تو وہ نہیں بانڈز کو انکریز یا ایویلویٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور کریڈٹ انہانسمنٹ ان بانڈز کو ایویلویٹ کر کے انہیں کوئی نہ کوئی ریٹنگ دے رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے پاس کنونشنل سسٹم ہے. اسلامکلی یہ ہمارے پاس بانڈز جو ہوتے ہیں ان کو ہم سکوک کہتے ہیں، کیونکہ کنونشنل بانڈ بہت ساری ایسی ایک انٹرسٹ شامل ہوتا ہے، یہ ان چیزوں کے اوپر بیسڈ ہوتے ہیں جو اسلامکلی الاؤڈ نہیں ہوتے. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ایک ڈیٹ یا لون، ٹریڈنگ آف لون رہتا ہے جس کی وجہ سے یہ الاؤڈ نہیں ہوتے. تو اسلامکلی یہ ایک جو بانڈز ایشو کیے جاتے ہیں ان کو سکوک کہا جاتا ہے. سکوک کا سنگل ورڈ سک ہے، جس کا مطلب ٹو ہٹ اور اسٹرائک کرنا ہے. اگر جب اس طرح کے پریویس ٹائمز پہلے جب کوئی ڈاکومنٹ اپروو کیا جاتا تھا تو اس پہ ایک سیل لگائی جاتی تھی ڈاکومنٹ پہ، یا جسے آپ اردو میں مہر کہتے ہیں، وہ لگایا جاتا ہے ان ڈاکومنٹس پہ. تو اس کو ہی ورڈ سک کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ٹو اسٹرائک یا ٹو ہٹ آن ون سیل ڈاکومنٹ ہوتا ہے. یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی الاؤڈ تھے، لیکن انہوں نے صرف اور صرف ان سکوک کے ان ڈاکومنٹس اس طرح کے بانڈز کو منع کیا تھا جو صرف اور صرف ڈیٹ بیسڈ فائنینشیل ٹرانزیکشنز میں ہوتی ہیں، جو کہ ہمارے ہاں کے کنونشنل بانڈز کہلائے جاتے ہیں. ڈفرینٹ طرح کے ہمارے پاس جو سکوک ہیں یہ آپ کے شریعہ بیسڈ ہوتے ہیں، اور جن میں آبویسلی جن کے پاس انڈر لائن کانٹریکٹس ہوتے ہیں وہ بھی شریعہ بیسڈ ہی رہتے ہیں، جن کے اسلامی ڈفرینسز میں دیکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس یہ ایک جو سکوک اونرشپ آف ایسٹ کو شو کرتے ہیں، جبکہ جو بانڈز ہیں وہ صرف اور صرف ایک ڈیٹ obligation کو شو کرتا ہے. جیسے ان کے پاس ہم نے ابھی بات کی کہ انڈر لائن ایسٹ جو ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس جو ہم ڈفرینٹ طرح کے آئی او فی کے انڈر لائن کانٹریکٹ جو ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ طرح کے جو آئی او فی سے اپرووڈ کانٹریکٹس ہیں ڈفرینٹ اسلامک شریعہ کے، ان کانٹریکٹ پہ بیسڈ ہوتا ہے. جبکہ جو بانڈ ہے وہ صرف اور صرف ایک لون کی ٹرانزیکشن یا انٹرسٹ یا ربا کو شو کر رہی ہوتی ہیں. ہمارے پاس جس طور ان کی ویلیویشن جب کی جا رہی ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس سکوک کی میں ایسٹ جو سکوک کی اماؤنٹ کی جو یا سرٹیفکیٹس کی جو ویلیویشن ہوتی ہے وہ اس چیز پہ ہوتی ہے جو ان کے بیک اینڈ پہ جو ایسٹ جنریٹ ہوتا ہے اس کے اکارڈنگ پہ کیا جا رہا ہوتا ہے. جبکہ بانڈز ہمارے پاس صرف اور صرف کریڈٹ وردینس پہ بیسڈ ہوتا ہے. یہاں سے جب آپ سکوک سیل آؤٹ کرتے ہیں تو اٹس مین کہ آپ اس ایسٹ میں جو پرچیزنگ جس نے کی ہے سکوک بانڈ سکوک کی، تو وہ اس کا اتنے ہی ویلیو کا اونرشپ بن جاتا ہے. لیکن جب بانڈز کی سیل اور پرچیز ہوتی ہیں تو صرف اور صرف سیل اینڈ پرچیز آف دی ڈیٹ ہے.
इस तरह के और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि सुकूक प्योरली शरिया बेस्ड ऑन शरिया के अकॉर्डिंगली है, तो इसमें हम बहुत इजीली इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। सुकूक अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग के तौर पे बहुत ज़्यादा फेमसली आफ्टर 2011 यूज़ होना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ये जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2011 में, तो इसने बाकी तमाम सेक्टर्स को मेजरली अफेक्ट किया था, लेकिन हमारे पास सुकूक इनसे बच कर रहे थे, यानी सुकूक पे इतना बैड वर्स इफेक्ट नहीं आया था। सुकूक इनिशियली 2000 में मलेशिया ने स्टार्ट किया था, जिसके बाद बहरीन ने भी आपके पास सुकूक आए थे, और उसके 2001 एंड 2000 के अलावा भी बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारी कंट्रीज हैं जो टाइम टू टाइम सुकूक इशू करती रहती हैं अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट। पाकिस्तान ने भी बहुत सारे सुकूक इशू किए हुए हैं, जिसमें से एक मेजरली मोटरवे सुकूक है, वापदा का सुकूक है। वापदा का सुकूक उनकी ही आपकी जो डिफरेंट वापदा की पावर टर्बाइंस के सिलसिले में इशू किए थे। एंड देन हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सुकूक। हम देख लेते हैं, हमारे पास ऑलमोस्ट जितनी भी अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनके बेस्ड पे सुकूक इशू हो जाता है, लाइक इजारा सुकूक हैं, मुराबहा हैं, एंड इस्तिस्ना, मुशारका, इजारा, इस्तेमाल, सलम सुकूक, ये डिफरेंट ऑलमोस्ट मोर और लेस तमाम ही टाइप्स के सुकूक इशू किए जा सकते हैं, जिसमें से हम कुछ सुकूक आज इसमें हम देखेंगे। हमारे पास आ जाता है लीज। सबसे पहले इजारा सुकूक। इजारा सुकूक इज़ बेस्ड टू हमारे पास होता है बेसिकली ये रेंट आउट बेस्ड के बेसिस पे होते हैं, जिसमें आप अंडरलाइन एसेट को रेंट आउट किया जा सकता है, उस रेंटल से बेस्ड वो हमारी कैश फ्लो होते हैं एंड सो ऑन। हमारे पास इसको इसके फॉर्मेट से देख लेते हैं, ये क्या जो इसका क्या प्रोसेस फ्लो उससे हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये कोई हमारे पास एसेट है जिसे ओरिजिनेटर ने इसको सोल्ड आउट किया है, और इसको फर्दर इसके बेसिस पे वो अपने अर्न करना चाहता है, किसी किस्म की अपनी सुकूक जनरेट करवाना चाहता है। क्योंकि जैसे ही उसने अपने इस करंट एसेट को एसपीवी, जो हमारे पास एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होती हैं, जिस तरह की हमने कन्वेंशनल एंटिटी देखी थी, उनका मोरलेस ही प्रोसेस रहता है, इसे इसको सोल्ड आउट कर देगा अपनी एसपीवी को, ताकि ये एसपीवी इसके एवज अपनी सिक्योरिटीज इशू कर सके। एसपीवी ही जैसे ही इसने इसको सोल्ड आउट करेगा, साइमल्टेनियसली इसको लीज बैक कर देगा अपने ओरिजिनेटर को, ताकि वो रेंट पे करे और कैश फ्लो जनरेट हो सके। ये बोथ आर इसमें जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे होते हैं सब इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते, तो इसमें कोई भी शरिया इशू नहीं आता। जैसे ही इसने लीज बैक कर लिया, साइमल्टेनियसली ओरिजिनेटर ने रेंट पे करने स्टार्ट कर दिए हैं। देन हमारे पास एसपीवी ने सिक्योरिटीज़ इशू की हैं। सिक्योरिटीज इशू करने से जो इन्वेस्टर्स ने परचेज की हैं, वहाँ से उन्होंने इसकी पेमेंट्स दे दी हैं। जो ये रेंट रिसीव हो रहा है, इससे कैश फ्लो जनरेट हो रही है और उससे इन्वेस्टर्स को पेमेंट्स दी जा रही होती है। ये प्राइस उन्होंने पे कर दी है अपनी वापस ओरिजिनेटर को, ओरिजिनेटर्स ने अपना इसका पर्पस यूज़ फुलफिल कर रहे हैं। जो हमने भी जैसे बात की कि रेंट आउट जब रिसीव हो रहा है, इससे वो पेमेंट्स इनको मिल रही हैं एसपीवी को, एसपीवी से अपनी इन्वेस्टर्स को कैश फ्लोस जनरेट होने के फॉर्मेट में कैश फ्लोस पे कर रही हैं, पेमेंट्स दे रही हैं। देन जब आफ्टर सम टाइम जिसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, जब रिडम्पशन का टाइम आता है, रिडम्पशन मींस जब वो उसका टाइम मैच्योरिटी आ जाती है इन सुकूक की, तो इन्वेस्टर्स आप अप्रोच करते हैं एसपीवी से कि वो अपनी प्रिंसिपल अमाउंट वापस हासिल करने के लिए एंड अपना टाइम पीरियड पूरा करने के लिए। तो ये आपके पास जैसे रिडम्पशन के टाइम पे अप्रोच करते हैं एसपीवी को, एसपीवी हमारे पास जो ओरिजिनेटर और उनसे अप्रोच कर रही होती हैं, ये आपने ऐसे परचेस और बैंक या ओरिजिनेटर जिस किसी ने एसेट मेजरली सेल आउट किया होता है, वो उससे वापस परचेस कर लेता है एंड अपने जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाती है, और यूँ ये प्रोसेस ऑफ सुकूक कंप्लीट हो जाता है। हम इसका बेसिकली प्रोसेस देख सकते हैं। सभी हमने बात की कि इसने एसेट परचेस किया है, देन उन्होंने सिक्योरिटीज़ इशू की हैं, इन्वेस्टर्स ने प्राइस पे कर दी है, इन्वेस्टर अपनी एसपीवी को पेमेंट कर देती हैं। जो इन्वेस्टर्स ने रेगुलर पेमेंट रिसीव करती हैं, वो उनके रेंट जो अप्रोच उनके पास मिल रहा होता है या उन्हें रिसीव हो रहा है, तो उस पर बेस्ड रेंट होता है जो ओरिजिनेटर से मिल रहा होता है। एंड लास्टली जब मेच्योरिटी का टाइम आ जाता है, तो वो अपना रिडम्पशन के लिए उन सर्टिफिकेट को इन्वेस्टर्स के पास अप्रोच करते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट हासिल करने के लिए वो अपना एसपीवी प्रोसेस करता है, उस एसेट को वापस उनको जिनसे परचेज किया रहता है ओरिजिनेटर उनको सेल आउट करते हैं, प्राइस रिसीव कर लेते हैं और अपने वो प्रिंसिपल अमाउंट को पे किया जाता है। ये हमारे पास मेजरली इजारा सुकूक का प्रोसेस था। मोर और लेस ही प्रोसेस पे बेस्ड हमारी जो वापदा इस्लामिक
पाकिस्तान इस्लामिक सुकूक इशू किए थे या सुकूक इस्लामिक बॉन्ड्स इशू किए थे वापडा के, यही वापडा के सुकूक इसी प्रोसेस पे मोर और लेस बेस्ड थे। सलम सुकूक हमारे पास एक सुकूक की टाइप है जिसमें जो सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं वो बेस्ड रहते हैं सलम कैपिटल के लिए। जो अमाउंट जनरेट होती है वो सलम कैपिटल होती हैं। जो परचेजर्स होते हैं ऑफ सर्टिफिकेट वो ओनर ऑफ द कमोडिटी होते हैं एंड वही उनके पास फुल फ्लेज जिस रेशियो से उन्होंने परचेज किया होता है उसी रेशियो से ओनर होते हैं। अब इसका प्रोसेस हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से करते हैं। जैसे ही कोई कंपनी ने या किसी बैंक ने किसी चीज़ ने सबसे पहले वो अमाउंट हासिल करने के लिए एक एसपीवी अपॉइंट करते हैं। एसपीवी की ही सबसे पास वो उसकी कैपिटल जनरेट करने के लिए हमारे पास उन्होंने अपॉइंट करने के बाद अपनी सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं। सिक्योरिटीज़ इशू जब हो जाती हैं तो देन ये प्राइस अर्निंग आ जाती है। यही प्राइस वो अपने बैंक को या जो ओरिजिनल होता है उसको ये दे देते हैं। जैसे ही उसके बाद ये अपना ओरिजिनेटर या बैंक आफ्टर सम टाइम के लिए अपना ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाता है। जिस भी पर्पस के लिए ये सिक्योरिटीज़ इशू की जाती हैं वो उस कैपिटल को यूज़ करते हुए वो प्रोसेस अपना जनरेट कर रहे होते हैं। एंड आफ्टर सम टाइम जब वो कंप्लीट हो जाती है या वो हमारे पास आज बन जाती है वो कमोडिटी, तो ये एसपीवी को डिक्लेयर करते हैं कि पोजेशन में अब इनके पास आ गई है ओरिजिनेटर के पास। ये फर्दर एसपीवी ही ये डिक्लेरेशन अपनी सुकूक होल्डर्स को दे देते हैं। देन सुकूक होल्डर्स और एसपीवी के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये हमारे पास इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कैपिटल अमाउंट के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं, उन्हें उस कमोडिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। तो ये इसको अपने एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि उसको मार्केट में सेल आउट करें और जो प्रॉफिट हासिल होता है वो अर्न कर सकें। तो इनके एसपीवी और इन्वेस्टर्स के बीच में एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट होता है। सिमिलरली एसपीवी ही अपने ओरिजिनेटर के साथ भी यही कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है कि वो उनके बिहाफ पर उनको किसी मार्केट में या सेल आउट करें और उसकी अपनी प्रिंसिपल अमाउंट की सेल प्रोसीड्स हासिल कर सकें। ये भी हमारे पास जो ओरिजिनेटर होता है उसको फिर फर्दर मार्केट में सेल आउट कर रहे होते हैं और जो प्रॉफिट अर्न होता है उससे वो सेल प्रोसीड्स को कंप्लीट कर रहे होते हैं। ये इसमें बेसिकली अब एक मोस्ट फेमस जो सलम सुकूक हैं वो हमारे पास बहरैन के हैं जो उन्होंने एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। उसका भी यही प्रोसेस होता है कि उनकी गवर्नमेंट या उनके पास जो मेजरली उनकी कंपनी होती हैं, लाइक हम ये कह सकते हैं कि बहरैन की गवर्नमेंट वो इशू करवा रही होती हैं, वो ओरिजिनेटर होती हैं एंड नेक्स्ट वो अपना एसपीवी ही किसी एसपीवी को अपॉइंट कर रही होती हैं। एंड जो इनके पर इन्वेस्टर्स होते हैं उसके वो यही प्रोसेस में रहता है। रेड लाइन उसको अपनी मार्केट में एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं एल्युमिनियम को आफ्टर जस्ट एक्सट्रैक्शन, और जो अमाउंट हासिल होती है उससे इनकी ये कॉन्ट्रैक्ट मूव ऑन कर रहे होते हैं या उनकी सेल प्रोसीड्स पूरी की जा रही होती हैं। ये इसका प्रोसेस फ्लो हमने देख लिया। देन हमारे पास आ जाते हैं मेजरली मुदारबा सुकूक है एक और एक मोस्ट फेमस। मुदारबा सर्टिफिकेट्स को कह सकते हैं कि यही जो परचेज़र होते हैं वो उनके सुकूक होल्ड सर्टिफिकेट टू परचेज़र वो उसके रब्बुल माल कहलाए जाते हैं। जो सुकूक इशूअर होता है वो हमारे पास मुदारिब है एंड जो फंड रियलाइज होता है या जो फंड जनरेट होता है यही मुदारबा कैपिटल है। इनसे ही अगर वो मुदारिब या इन्वेस्टर अपना शेयर्स इन्वेस्ट के साथ इन्वेस्ट करना चाहे तो यही उसका वो प्रोपोर्शनेट डबल शेयर प्रॉफिट ले रहा होता है एसपीवी। इसमें इसके अलावा जब वो एज अ मुदारिब प्रॉफिट हासिल कर रहा होता है और उससे एडिशनल प्रॉफिट भी मिल रहा होता है। हम इससे ये बात नेक्स्ट इसका प्रोसेस देख लेते हैं कि इसी सिमिलर बेसिस पे लेट्स सपोज हम कोई ये कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस के लिए अगर ये जनरेट हो रही है सुकूक हो रहे हैं तो सबसे पहले उन्होंने एसपीवी अपॉइंट कर लिया है। एसपीवी ने अपने सर्टिफिकेट इशू की हैं, मुदारिब ने जो अमाउंट प्रोसेस का हासिल हो रहा है उससे वो उन्होंने अपने फर्दर कॉन्ट्रैक्ट किया एसपीवी ने कोई हाउसेस के कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस के लिए जिनका टेन्योर 3 इयर्स में उन्होंने कंप्लीट करना है। यहाँ पर हम देख लेते हैं इन केस कि अगर इस पॉइंट पर मुदारिब अपना एडिशनल फ़ंड भी कर ले तो यही आपके पास यहाँ अगर एडिशनल फ़ंड कर लेता है तो यही एक मुशारका कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि एसपीवी ने ही अपना साथ साथ एडिशनल अमाउंट भी इन्वेस्ट कर दी है। लेकिन हेयर द एग्जांपल ऑफ मुदारबा के सुकूक के ही साथ है तो हम उसके साथ स्टक इन रहेंगे, यानी हम उसी को ही कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसे ही वो अपना 3 इयर्स का टेन्योर के लिए किसी कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करेगा कि वो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस को करे जिनका लेट्स सपोज टाइम ड्यूरेशन 3 इयर्स है।
जब आफ्टर 3 years ये हाउसेस कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे हमारे पास के लिए, तो फिर ये हमारे पास, हमने कहा कि वो उन्हीं हाउसेस को एक सेपरेटली कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लीज पे दे देगा अपने ओरिजिनेटर्स के ही एम्प्लॉयज़ को, ताकि उनसे वो रेंट हासिल कर सके। और जैसे ही रेंट पे हो रही हैं, यही रेंट हमारे पास हमारे SPV के पास जाता है, और यही इन्वेस्टर्स का प्रोसेस या इन्वेस्टर्स के लिए कैश फ्लो ही बन रहा होता है। लेकिन ये हम बात आपको एक याद होनी चाहिए कि ये आपके पास जो इशू रेंटल्स मिल रहे होते हैं, ये आफ्टर किसी भी एसेट के प्रोडक्टिविटी पीरियड के बाद से स्टार्ट होते हैं, कि वो उसमें 5 years लगे, 7 years लगे, इनिशियल या 4 years हों। उसके बाद टाइम जब इसका प्रोडक्टिविटी टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद से ही ये प्रोसेस हमारे पास स्टार्ट हो जाता है इनकी अप्रूवल का। इसके अलावा हमारे पास सुकूक का मेजर प्रोसेस, तो यहाँ पे ये डिफरेंट जो हमने 3 या 4 सुकूक की टाइप्स देखी थी वो कंप्लीट होती हैं, और बहुत सारी सुकूक की टाइप्स हैं जिन्हें हम आइंदा किसी और लेक्चर में देखेंगे। मेजरली यही सुकूक की बेस्ड होती हैं। इनमें हमारे पास शरिया की इश्यूज़ कोई ख़ास नहीं है। शरिया ने सुकूक को अलाउ किया हुआ है, जिससे हम अपनी IOFI की बुक में इनका डिफरेंट ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, इनके प्रोसेस या इनके रिस्क एंड रिटर्न्स के लिए हम वहाँ से भी कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ डोंट, मेरे इस लेक्चर को अगर आपको पसंद आए तो आपने शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।